Hello friends, in this video I will be talking about how a bond's maturity, coupon and yield level will affect its duration, that is the interest rate risk. Now we will begin with the same example that we started for finding the Macaulay duration. We used this example, so let's just quickly go through the example. हमने example में क्या देखा था? So we had this year का column, first वाला. Then we had the cash flow column. Okay, cash flow is basically the coupon. Okay, now 40 का coupon था and 1000 का FV था. So I've taken that. PV of F, rather PV of cash flows. PV कैसे निकाला था? तो 5% was the YTM. So 40 divided by 1.05 first year का, फिर 40 divided by 1.05 square second year का, and so on. We had a PV of 972.77. Then we found weights. Weights क्या था? तो हर एक कॉलम ये 38.10 है divided by the full price. फिर second 36.28 divided by the full price. ऐसे करके we got all the weights. Now we are finding a weighted average ना, तो ये weights को multiply कर देंगे by the number of years. तो ये first year से multiply हो गया, ये 2 से multiply हो गया और ये 3 से multiply हो गया weight. And ultimately I got 2.884. Okay. Now 2.884 जो था, this was Macaulay duration, and after this we found modified duration. If you remember, modified duration के लिए the formula was Macaulay duration upon 1 plus YTM. तो ऐसे करके हमने modified duration ढूंढा था. Now what is the effect of changes? किस में चेंज करेंगे? तो वी विल ट्राई टू चेंज द कैश फ्लो कॉलम, कूपन चेंज करने का ट्राई करेंगे. वी विल ट्राई टू चेंज द YTM, यहाँ पर जो YTM है ना वो चेंज करने का ट्राई करेंगे. अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड इवन द मैच्योरिटी, ये भी हम चेंज करेंगे. एंड वी विल फाइंड द इफेक्ट कि ये ड्यूरेशन का जो आंसर है ना, या तो ये एनी, उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है. ओके, सो रिमेंबर इंटरेस्ट रेट रिस्क इज मेजर्ड बाय ड्यूरेशन. We used the above example to find the duration. So mathematically, just think mathematically, if I increase the maturity, that will be equal to increase in duration. Interest rate risk जो है वो increase होने वाला है. How? देखो, अगर मेरा maturity 3 years है, here I am taking the last year as 3 years ना, तो मेरा जो tenure है ना वो 3 years है. If tenure is 3 years, तो duration इतना है 2.884. If I make the tenure as 4 years, तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाएगा. लेट्स से समथिंग अराउंड 3.75, जस्ट एन एग्जांपल. इसको 5 कर दिया तो मे बी समथिंग लाइक 4.6 और सो. मतलब जैसे जैसे मेरा ईयर बढ़ने वाला ना, टेनोर बढ़ने वाला, वैसे वैसे ये ड्यूरेशन बढ़ने वाला आंसर, एंड अकॉर्डिंगली आई विल हैव इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिस्क. So it is directly related. Increase in maturity will equal increase in duration. Next है increase in YTM. What if I increase the YTM? Now if I increase the YTM, so present value will fall. यहाँ पर ये जो है ये सारा present value ढूंढना है. If I increase the YTM, शायद मैं इसको 6% कर दूंगा ना, तो now the value will be less than 972.77, correct? If the value is going to be less, accordingly the whole table will change. You can check, the whole table will change and the answer you get will be less than 2.884. So always remember, if there is an increase in YTM, your present value will fall and your duration will also fall. तो ये याद रखो. फर्स्ट वन डायरेक्टली रिलेटेड था. इफ इट वाज मैच्योरिटी, अगर इंक्रीज इन मैच्योरिटी हो रहा है तो ड्यूरेशन भी इंक्रीज होगा. बट अगर इंक्रीज इन YTM हो रहा है तो ड्यूरेशन विल फॉल. ओके, मैथमेटिकली. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन कूपन, दैट विल डिक्रीज द ड्यूरेशन. नाउ हाउ इज इट सो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू ट्राई डूइंग इट मैथमेटिकली ना, यहाँ पर अगर तुमने कूपन को बढ़ा दिया ये तीनों जगह पे, डोंट थिंक कि तुम्हारा फाइनल आंसर बढ़ जाएगा. नो, चेक, वी कैन प्रूव इट. यू कैन चेक यूजिंग वन जीरो कूपन बॉन्ड एंड वन नॉर्मल बॉन्ड. एक जीरो कूपन बॉन्ड लो और एक नॉर्मल बॉन्ड ले लो, ठीक है. अब नॉर्मल बॉन्ड जो है, लेट्स से कूपन 4 रखते हैं उसको, दोनों का 10 और 3 इयर्स का रखते हैं एंड YTM 5% का रखते हैं. Do it as an exercise if you want. You can try these.
पहले जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए यू हैव एन एज 3, you have your YTM as 5, then you have your FV as 1000, then you have PMT as 0 because it's a zero coupon bond, तो कोई भी नहीं आने वाला इसमें. Then you find your present value, ठीक है. यहाँ पर देख लोगे, यहाँ पर you'll take any other bond, normal coupon bond ले लो, उसका N3 आएगा, I/5 आएगा, FV 1000 आएगा, ओके. एंड PMT जो है इन दिस केस 4% का मैंने लिया है कूपन, तो ये हो गया 40. नाउ यहाँ पर जो है ना जीरो कूपन बॉन्ड में वट एवर प्रेजेंट वैल्यू यू गेट, ऐसा एक टेबल बना लो उसका, जो भी प्रेजेंट वैल्यू यू गेट, यहाँ पर फर्स्ट जीरो आ जाएगा, सेकेंड जीरो आ जाएगा, थर्ड में देयर विल बी सम अमाउंट. व्हाई? बिकॉज कैश फ्लो जीरो है ना जीरो कूपन बॉन्ड में, यहाँ पर भी जीरो है, एंड का कैश फ्लो 1000 है, ओके. प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो 1000 यहाँ पर 1040 के बदले 1000 डाल दो, इधर कुछ तो भी आंसर आएगा. when you find weights, ऊपर वाले दोनों आंसर तो जीरो हो जाएंगे, तो this amount divide by the total that will give you weight of 1 only, ये तो 0 0 हो जाएगा for a zero coupon bond. Accordingly weighted average में भी ये 0 0 हो जाएगा and ये 1 हो जाएगा. So my duration here, sorry this is not 1, this is 1 into 3 which will be 3 and my duration will be 3. मतलब अगर जीरो कूपन बॉन्ड है ना, तो जो टेन्योर है ना 3 years, वही मेरा ड्यूरेशन आएगा 3 years का. सो यू कैन मेक अ फ्रेश न्यू टेबल फॉर बोथ. ये कूपन बॉन्ड वाला तो ये रहा, यही है टेबल जो ऑलरेडी हमने बनाया था, उसका ड्यूरेशन 2.884 आया है. यू कैन मेक अ ड्यूरेशन टेबल फॉर जीरो कूपन बॉन्ड. यू विल गेट द ड्यूरेशन इक्वल टू द मैच्योरिटी. यहाँ पर मैंने लिख दिया है ड्यूरेशन ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड विल बी हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल बॉन्ड. एंड जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना होता है? दैट इज इक्वल टू इट्स मैच्योरिटी ओनली विच इज 3. ऑलवेज रिमेंबर, जीरो कूपन में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन आ रहा है विच इज 3, तो कूपन में तो कम आएगा. मीनिंग व्हेन आई इंक्रीज द कूपन माय ड्यूरेशन डिक्रीजेस. सिंपल. जितना ज्यादा कूपन होगा उतना कम ड्यूरेशन होगा, उतना कम इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा. मीनिंग अगर जीरो कूपन बॉन्ड कोई ले रहा है ना, तो उसको इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, ओके. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकता है, ओके. Last point, for a discount bond, duration increases with longer maturity. ये हमने देखा पहले. डिस्काउंट बॉन्ड मतलब क्या पता है? विच इज अवेलेबल टुडे एट अ डिस्काउंट. अगर योर फेस वैल्यू और योर फ्यूचर वैल्यू इज 1000, अपने एग्जांपल में पीछे 972 का प्राइस आया था, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एट अ डिस्काउंट. तो इसके लिए ड्यूरेशन विल इंक्रीज व्हेन देयर इज अ लॉन्गर मैच्योरिटी. ऑफ कोर्स टेन्योर बढ़ रहा है तो ड्यूरेशन भी बढ़ेगा. But then it decreases over a range of relatively long maturities. इसका मतलब क्या होता है पता है? एक relatively longer maturity रहेगा ना, मतलब के बहुत long, जैसे फॉर एग्जांपल perpetuity. Perpetuity मतलब क्या? बहुत ही लंबा maturity, और we can say endless. Now in that case duration will decrease. Now we can't prove it because it will take a lot of time, परपेचुइटी तक जाने वाला है. बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ड्यूरेशन ऑफ द परपेचुइटी मतलब कि फॉरएवर बॉन्ड, लाइफ टाइम बॉन्ड चलते रहेगा, लाइफ टाइम इंटरेस्ट पेमेंट आते रहेगा, उसका ड्यूरेशन होता है 1 प्लस YTM डिवाइड बाय YTM. सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, चाहिए तो 1 प्लस YTM मतलब 1.05 डिवाइड बाय द YTM विच इज 0.05. ओके, सो दिस विल बी द ड्यूरेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर एक डिस्काउंट बॉन्ड तुमने लिया है, ठीक है, वन डिस्काउंट बॉन्ड, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई इंक्रीज द ड्यूरेशन और अदर व्हेन आई इंक्रीज द टेन्योर, उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होने वाला है. बट देन इट डिक्रीजेस ओवर अ रेंज ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग मैच्योरिटीज. मतलब क्या पता है? बिफोर परपेचुइटी टेक वेरियस मैच्योरिटीज. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेक 10 years, then take 20 years, then take 30 years and so on. It will increase but at a decreasing rate. बढ़ेगा but at a decreasing rate. मतलब क्या है? अगर आज ड्यूरेशन 1 है, कल 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इंक्रीजिंग एट अ स्टेबल रेट. ठीक है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, बट देयर इट विल इंक्रीज बट नॉट एट द सेम रेट. ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा 2.8, फिर आएगा 3.7 इंस्टेड ऑफ 4,
and so on. So it increases but at a decreasing rate. Okay, remember these two concepts. And duration of perpetuity, तो उसका formula है directly 1 plus YTM divide by YTM. Okay, that's all. Thank you for watching this video.